اس ناول کا خلاصہ ہے آپ کے لیے۔ علیم سویرے کے لیے کرسیوں کا تو کہہ دیا ہے نا؟ اسے اپنے سسر کی آواز آئی۔ جی ابا جی، کہہ دیا ہے۔ اس نے پہلی بار علیم کی نرم آواز سنی اور بہت اچھا لگا۔ اور ٹینٹ والے کو بھی دوبارہ فون کیا یا نہیں؟ ابا جو لوگ کرسیاں دے رہے ہیں وہی ٹینٹ بھی لگائیں گے۔ اچھا اچھا، اور دوپہر میں جو دیگیں پکوانی ہیں وہ؟ ابا وہ میں نے 2 مرتبہ فون کیا، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا۔ عجیب احمق اور گھامڑ آدمی ہو تم۔ ارے میاں، اتنے مہمان ہیں گھر میں، پکا پکایا کھانا نہیں آئے گا تو کیا کرو گے؟ ابھی جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ شبانہ نے سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10 بج رہے تھے۔ وہ رخصت ہو کر 8 بجے ادھر آئی تھی اور اتنی دیر سے بیٹھے بیٹھے تھکن سے زیادہ کوفت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ارے آج تو شجاعت بھی گھر پر ہے۔ ہاں بھائی، اب تو شجاعت اکثر جلدی گھر آ جاتا ہے، اماں بھی خوش ہو کر بتانے لگیں۔ لگتا ہے یہ تبدیلی بھابھی کی آمد سے ہوئی ہے، صفورہ نے عام سے انداز میں مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ شبانہ اندر تک ہل کے رہ گئی۔ جی ہاں، ہم تو اسی شوق میں گھر میں رہتے ہیں، مگر بھابھی صاحبہ ہمیں لفٹ ہی کہاں کرواتی ہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتے ہم انہیں۔ السلام علیکم۔ ایک خوبصورت سا ناولٹ جس کا نام ہے اپنی منزل اپنے راستے۔ اگر یہ ناولٹ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناولٹ کا شروعات کرتے ہیں۔ اس رشتے کے بارے میں جہاں سے بھی پتہ کروایا ہے، لوگوں نے تسلی ہی دی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے آج کل کے زمانے میں ایسی شرافت اور متانت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جیسا کہ علیم میاں کے مزاج میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں حکیم صاحب، ورنہ جیسا شبانہ کا مزاج ہے میں تو اس لڑکی کے لیے بے حد پریشان تھی۔ پورے 22 کی ہونے کو آئی ہے، سنجیدگی نام کو نہیں۔ 1000 بار کہا کسی آنے جانے والے کے سامنے ہی طریقے سلیقے سے نظر آ جایا کرو، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ تو اللہ کو سبب بنانا تھا۔ جس روز علیم کی والدہ اسے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئیں، اسے ہلکا سا بخار تھا، حرارت بھی ہو رہی تھی، اسی لیے بجائے دروازے میں لٹکی نظر آنے کے یا چھت پر ہونے کے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے بلایا، چپ چاپ چلی آئی اور جتنی دیر بیٹھی چپ ہی رہی۔ بیگم کوکب ہنس ہنس کر میاں کو بتا رہی تھی، اللہ نصیب اچھے کرے، جب جب علیم میاں کو دیکھتا ہوں جی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا بھولا چہرہ، صاف رنگت، اچھی صحت، قد میں ذرا کم ہے، ہماری شبانہ سے تو اونچا ہی ہے۔ ہاں جی، اور جہاں اتنی خوبیاں ہوں وہاں یہ کمی کوئی ایسی کمی بھی نہیں۔ وہ کون سا ٹھگنا ہے؟ وہ داماد کی ذرا سی برائی بھی برداشت نہیں کر سکیں۔ ہاں ہاں، میں نے کب ایسا کہا؟ وہ تو اس کا چھوٹا بھائی شجاعت خاصا اونچا لمبا ہے، اس لیے خیال آ گیا تھا۔ حکیم صاحب نے فوراً وضاحتی بیان جاری کیا۔ شبانہ کو بھابھی کے ذریعے بتایا گیا تھا اس کا رشتہ کسی علیم نامی حضرت سے طے پا چکا ہے، اسکول ٹیچر ہیں، 9th کلاس کو اردو عربی مطالعے پاکستان کے مضمون پڑھاتے ہیں۔ دیکھنے میں کیسا ہے بھابھی؟ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے، وہ بھی جیون ساتھی میں کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ خوش شکل ہے، چہرے سے حد درجہ شرافت ٹپکتی ہے۔ سچ شبانہ، بس یوں سمجھ لے شرافت کا دریا ٹھاٹھے مالتا محسوس ہوتا ہے۔ گول چہرہ، آنکھوں پر گول ہی اینک، بال سلیقے سے سر پر جمائے ہوئے، دھیرے دھیرے سوچ سوچ کر بولتا آج کے دور کا لڑکا نہیں لگتا۔ اور ہاں، لباس پتہ ہے کیا پہنتا ہے؟ کرتا پاجامہ۔ بھابھی اسی کی عمر کی تھی اور دونوں میں نند بھابھی کا رشتہ کم، دوستی اور بہناپا زیادہ تھا۔ اس نے سب سن کر اس بات میں سر ہلایا اور بولی، بس مجھے کالے کلوٹے مرد اچھے نہیں لگتے۔ آج سے پہلے جتنے بھی رشتے آئے ہمارے ہی محلے کے گھروں سے ہیں، جن کے لڑکوں کو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، ذرا بھی متاثر نہیں ہوں۔ اس لیے میں ان خواتین کے آنے پر خود کو حد سے زیادہ شوخ، لاپرواہ، پھوڑ ثابت کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ان حضرت کے بارے میں جو کچھ آپ نے بتایا ہے کافی حد تک تسلی بخش ہے۔ شرافت اچھی چیز ہے، باقی لباس کا کیا ہے، وہ تو میں اپنے پسند کے مطابق پہنا سکتی ہوں۔ ہاں شبانہ، بظاہر رشتہ ہر لحاظ سے معقول ہے، امی ابا تو بے حد مطمئن اور خوش ہیں، بس لڑکے کی ماں مجھے ذرا تیز مزاج کی لگتی ہے۔ ارے تو ہوا کریں، ہم کون سا کم ہیں؟ شبانہ فطرتاً لاپرواہ کچھ دلیر لڑکی تھی، جو ہنس کر بات کر لیتا، اس کی دل و جان سے دوست، اور جو ذرا ٹیڑھے منہ کے ساتھ ملتا اسے دور ہی سے سات سلام۔ حکیم صاحب اور کوکب بیگم ماسٹر علیم کے ہاں جا کر باقاعدہ رضامندی دے آئے،
और इन लोगों ने कहा कि वो 1 हफ्ते के बाद आकर अंगूठी पहना कर बाकायदा मंगनी कर देंगे। ये 1 हफ्ते की ताख़ीर भी इसलिए हुई कि मास्टर अलीम की बड़ी आपा के बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, और बड़ी आपा और उनके बच्चों की शिरकत के बगैर भला तकरीब कैसे हो सकती थी। बड़ी आपा उनकी एक ही तो बहन थी, ना सिर्फ वालदैन बल्कि मास्टर अलीम की भी बहुत लाडली थी। अलबत्ता अलीम से छोटा शुजात अपनी मर्ज़ी और मोड का मालिक था, और इसने बड़ी बहन को भी कभी बहुत ज़्यादा अहमियत न दी थी। हालांकि वो इसके बड़े लाड उठाती थी। इतने लाड अलीम के उठाए जाते तो सारी उम्र बहन के एहसानों के बोझ तले दबा रहता। एक जोड़ा हरे रंग का जिस पर दबके का काम था, अंगूठी सोने की बेहद नाजुक। मिठाई 3 किलो यहीं मोहल्ले की दुकान से ली गई, काफ़ी सस्ती मिल जाती है। बड़ी आपा ने मंगनी का सामान देखा तो बोली, अम्मा थोड़ा मेकअप का सामान, सैंडल भी तो होनी चाहिए। ये चल रहने दे सफ़ूरा, अभी शादी पर बहुत खर्चे होने, लड़की की कमाई है ही कितनी जो शानदार से सामान की आस लगाए। सफ़ूरा ने फिर कुछ नहीं कहा। अलीम करीब ही बैठकर स्कूल के बच्चों के उर्दू के टेस्ट चेक कर रहा था। मजाल है एक बार भी सर उठाकर होने वाली दुल्हन के यहाँ जाने वाली अशिया को देखा। हाँ, छोटा शुजात एक एक चीज़ पर तबसरा करता रहा। मगरिब के वक्त सफ़ूरा, अम्मा, अब्बा और शुजात तैयार होकर लड़की के यहाँ चले गए। अलीम के मुतालिक अब्बा ने कहा, अभी सिर्फ मंगनी ही तो हो रही है, लड़के का आना मायूब लगता है। अलीम टेस्ट चेक कर चुका था, सब के सब समेट कर अंदर चला गया। अभी उसे अपने कपड़े इस्त्री करने थे, जूते भी पॉलिश करने थे। कुछ देर पहले नहाया था, बाल खुश्क होकर माथे पर बिखर रहे थे। उन्हें तेल लगाकर सलीके से सर पे जमाना था। अगले रोज़ स्कूल जाने के लिए शाम ही से तैयारी शुरू कर देता था। घर वाले लड़की के यहाँ चले गए और वो बालों में तेल रगड़ने बैठ गया। शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। हकीम साहब कोई ऐसे अमीर आदमी तो थे नहीं, कुनबा भी मुख्तसर था, एक ही बेटी थी और इसे अपनी हैसियत से बढ़कर देना चाहते थे। आजकल मतब बेटे के हवाले था और मियाँ बीवी बाज़ारों के चक्कर लगाते रहते थे। फर्नीचर, क्रॉकरी वगैरह हकीम साहब ने अपनी पसंद से ख़रीदी। कपड़े ज़ेवर ख़रीदना पसंद करना घर की औरतों की जिम्मेदारी थी। इसके लिए शुबाना, इसकी भाभी और अम्मा सुबह शाम बाज़ारों के चक्कर काटती। वैसे तो कपड़े घर पर ही सी लिए जाते थे, मगर ये कोई आम कपड़े थोड़ी थे, ये तो अरमानों से ख़रीदा गया जहेज़ का सामान था। अच्छे अच्छे दर्जियों के यहाँ फेरे लग रहे थे। लड़के और लड़की की तरफ से सब मुतमईन थे। मंगनी पर उनकी जानिब से जो कुछ आया वो अच्छा नहीं था, ना तो जोड़ा खूबसूरत और बढ़िया, ना ही अंगूठी वज़नदार। मगर ऐसी बातों को उन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। कौकब बेगम का दिल बुरा हुआ था। मियाँ से जिक्र किया तो बोले, ये सब तो लड़के की माँ बहन ने पसंद किया होगा, हमें तो लड़के से मतलब है, वो नेक और सादतमंद है। इन चीज़ों की अहमियत ही क्या है, बस अच्छा दामाद मिल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अलीम मियाँ की शराफत और नफासत की बात हर कोई करता था। शुबाना मुतमईन तो थी, मगर एक इंतज़ार, एक आस सी रहती कि उधर से कोई महकता पैगाम आए, कोई तोहफ़ा मौसूल हो। ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। इसे याद था जब भाई भाभी की बात तय हुई थी। भाभी शुबाना के हाथ कितने ही तोहफे भाभी को भेजा करते थे। जवाब में शर्माती हुई वो भी कोई ना कोई बंद पैकेट चुपके से शुबाना को थमा देती, इस ताकीद के साथ कि उन तक पहुंचा देना। और अब जब शुबाना का वक्त था तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सहेलियां अक्सर पूछती, कुरेदती और इसे कभी शर्मिंदगियाँ घेरती, कभी गुस्सा आने लगता। नसरीन भाभी से दिल की हर बात कह दिया करती थी। एक रोज़ ही शिकवा भी कर बैठी, कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने, कैसा ठुस बंदा है, मजाल है कभी कोई ख़त, कोई तोहफ़ा ही भेजा हो। अरे ऐसे दिल मैला मत करो, ये भी तो सोचो आखिर कुछ भेजे तो किसके हाथ। अपनी अम्मा के हाथ तो भिजवाने से रहा। आप अभी इसकी माँ टाइप ही है, और रहा भाई उम्र में अलीम से कम ज़रूर होगा। देखने में छोटा भाई नहीं लगता, मिजाज का भी अलग सा है। अलीम जितना धीमा है ये इतना ही नखरीला और चालाक दिखाई देता है। मेरा ख्याल है दोनों भाइयों में बेतकल्लुफ़ी नाम को भी नहीं होगी। भाभी की बातों से इसे भी तसल्ली हुई, वाकई ये सब तो इसने सोचा भी नहीं था। कितनी पागल हूँ मैं भी, लड़कियों की बातों में आकर अपना दिल बुरा कर बैठती हूँ। अब वो इत्मीनान से जहेज़ की तैयारी करने लगी। एक सूट पर सितारों का काम किया, एक पर रेशमी धागे से फूल काढ़े और जब नीला गोटे के काम वाला सूट मुकम्मल करके दुपट्टा सर पे डालकर आईने के सामने खड़ी हुई, बेइख्तियार शर्मीली मुस्कान होठों पर फैल गई। कितना सजरा था, आज तो कोई सराहने वाला नहीं। कल जब वो ये सूट पहनेगी तो इससे आगे वो ख्वाबों की वादियों में उतर गई और उतरती चली गई।
इसकी सास अक्सर आती रहती थी। सुना था मिजाज की तेज़ हैं, इसलिए शुरू में अम्मा और भाभी उनकी आमद पर कुछ घबराहट का शिकार हो जाया करती थी। क्या पता किस वक्त क्या कहते, कौन सी फरमाइश करते। अब 2 महीने होने को आए, वो आती, तरीके सलीके से बैठती और चली जाती। कभी दिल आज़ारी वाली कोई बात उन्होंने नहीं की। हाँ, एक बात का अंदाज़ा ज़रूर इन्हें हुआ कि वो कंजूस मक्खी चूस टाइप औरत ज़रूर थी। बेटे की ससुराल थी, हमेशा खाली हाथ ही तशरीफ़ लाया करती थी। यहाँ आकर एक टाइम का खाना भी ज़रूर होता, चाय खातिर मदारत इसके अलावा थी। मगर इन्हें कभी ख्याल नहीं आया कि इन्हें भी कुछ लेकर जाना चाहिए। जबकि हकीम साहब और कौकब बेगम जब भी उनके यहाँ गए, फलों मिठाइयों से लदे फंदे ही गए। शादी की तारीख दी गई, ठीक 1 माह के बाद इसे ब्याह कर दूसरे घर जाना था। सुना था अलीम मियाँ ने ये तारीख रखने पर खासा इतराज़ किया था। ये वक्त स्कूल में सालाना मुआयने का भी था। अम्मा अब्बा के सामने एक नहीं चली, उन्होंने तारीख रख कर ही दम लिया। बेचारा कहता रहा 2 माह बाद की तारीख रख लें। अम्मा ने एक नहीं सुनी। सफ़ूरा उनके यहाँ आई तो हंस हंस कर बता रही थी, मामू की सुनता कौन है, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली भांजी मज़े से बोली थी। ये बात यहीं कमरे में मौजूद शुबानों को अच्छी नहीं लगी। मर्द को ऐसा भी मोम की नाक नहीं होना चाहिए। ये ज़रा सी भांजी साहिबा अहमियत देने को तैयार नहीं। खैर, इसके इस तरह सोचने से क्या होना था। दिन करीब आते गए, फिर आंगन में ढोलक भी रखती गई, रिश्तेदार भी आने लगे, घर में रौनक लग गई। शुबाना आदत के मुताबिक हर किसी से हंसी मजाक में लगी रही। अम्मा ने कहा, यूँ कुदकड़े लगाती रहोगी तो खाक रूप आएगा। शादी के रोज़ टिक कर अपने कमरे में बैठ जाओ। अम्मा, मुझ पर वैसे ही बड़ा रूप है, कमरे में बंद होकर मुझसे नहीं बैठा जाता। भला ही कोई बात है, घर तो सहेलियों से भरा है, मैं कमरे में जा बैठूं। ये सब वहीं आ जाएंगी तुम्हारे कमरे में। मगर इसने अम्मा की नहीं सुनी। छत के चक्कर भी लगते रहे, दीवार पार रहने वाली पड़ोसन से बातें भी होती रहीं। दरवाजे में खड़े होकर गोल गप्पे ख़रीदे, आलू छोले वाले से चाट भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवाई। हाँ, मगर मेहंदी के रोज़ दिल बहुत उदास हो गया। अब ये घर पराया हो जाएगा। मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मुझे तो इस कमरे बिस्तर के बगैर नींद ही नहीं आती। मुझे तो अम्मा से सर में तेल डलवाने की आदत है। मैं तो जब तक भाभी को छोटी बड़ी बात ना बताऊं, मुझे चैन नहीं पड़ता। अब इस घर में कभी कभी आना होगा, किसी मेहमान की तरह। बार बार आंखें भीगने लगती थीं। इसी कैफियत में दुल्हन बनी आने वाले दिनों के खूबसूरत ख्वाब भी आंखों में थे। बिछड़ने वालों का दुख ज़्यादा था। दूल्हा बना अलीम उसके बराबर आकर बैठा। दिल ज़ोर से धड़क उठा। मूवी बनी, तस्वीरें खींची। कल तक वो आम सी लड़की थी, आज कितनी ख़ास हो गई। हर नज़र इस पर थी। रुखसती के बाद जिस घर में आई वो बहुत छोटा सा था। इसका कमरा बस इतना ही था कि बेड डालने के बाद ड्रेसिंग टेबल, अलमारी की जगह बचती थी। बाकी इसका सामान यकीनन दूसरे कमरों में रख दिया गया होगा। घर मेहमानों से भरा था और इतना शोर था कि इसे वहशत होने लगी थी। कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही, फिर जायज़ा लेने लगी। इसका नया बेड, इस पर डाला खूबसूरत बेड कवर, चमकती हुई ड्रेसिंग टेबल और अलमारी। कमरे में लगे पर्दे किसी ने तब्दील करने की जहमत नहीं की। कैसे बदरंग हो रहे थे। दीवार पर लगा कैलेंडर बड़ा आम सा था। एक कोने में धरी अलीम साहब की राइटिंग टेबल किस कदर पुरानी और मैली सी थी। कम अज़ कम पॉलिश ही करवा ली जाती। लगता है बहुत ही लापरवाह हैं या फिर सुस्त हैं। खैर, मैं ना तो सुस्त हूँ ना ही लापरवाही बरतूँगी। अपने कमरे को तो मैं खूब सजाऊँगी। बाहर से आती आवाज़ों की जानिब ध्यान गया। पहचान में मुश्किल नहीं हुई। औरतों की आवाज़ों के दरमियान ये मर्दाना आवाज़ यकीनन शुजात की थी। खूब चहक रहा था। लगता है मौसूफ़ अपनी फैमिली में खासे पसंद किए जाते हैं। अच्छा कमा रहा है, कद-बुद भी अच्छा है। हाँ, सूरज कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं। भाभी भी कहती हैं नखरीला और मगरूर लगता है। खैर, मुझे क्या, जो मेरा है वो तो ऐसा नहीं है। अलीम, सवेरे के लिए कुर्सियों को तो कह दिया है ना? उसे अपने ससुर की आवाज़ आई। जी अब्बा जी, कह दिया है। उसने पहली बार अलीम की नर्म आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। और टेंट वाले को भी दोबारा फ़ोन किया या नहीं? अब्बा, जो लोग कुर्सियाँ दे रहे हैं वही टेंट भी लगाएंगे। अच्छा अच्छा। और दोपहर में जो देगे पकवानी हैं वो? अब्बा, वो मैंने 2 मरतबा फ़ोन किया है, कोई उठा ही नहीं रहा। अजीब अहमक घामड़ आदमी हो तुम। अरे मियाँ, इतने मेहमान हैं घर में, पक्का पकाया खाना नहीं आएगा तो क्या करोगे? अभी जाओ, पता करके आओ। सुनो, जहाँ शादी हाल में शाम को वलीमा की दावत है, वहाँ भी एक बार बात कर लेना। शुबाना ने सर उठाकर घड़ी की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। वह रुखसत होकर 8 बजे इधर आई थी।
और इतनी देर से बैठे बैठे थकन से ज़्यादा कोफ्त का एहसास होने लगा था। भाई जान भी अजीब ही हैं, जो फ़िक्र सबसे पहले करनी चाहिए थी इसकी परवाह ही नहीं की। शुजात मजाक उड़ा रहा था। दरवाजे पर आहट हुई। शुबाना ने सर नहीं झुकाया, उधर ही देखने लगी। उजलत भरे अंदाज में अलीम कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन को जो यूं मुँह उठाए दरवाजे ही की जानिब देखते पाया तो हैरत से कुछ लड़खड़ा सा किया, फिर संभला और बोला, बैठे बैठे थक गई होंगी, लेट जाइए, मुझे अभी कुछ। अलीम, ओ अलीम, बाहर से पुकारती सफ़ोरा आपा कमरे के दरवाजे तक आ गई। बैठ के करीब आता अलीम ठिठक के रुक गया और जी आपा कहकर रुख शुबाना की जानिब से फेर कर दरवाजे की जानिब कर लिया। ए भाई, बाज़ार जा रहे हो? मेरा छोटा बहुत रो रहा है, सेब खाने की ज़िद कर रहा है। असल में इधर जो खाना पक्का था, अल्लाह तौबा, मिर्चें ही मिर्चें थीं। हम में से किसी से नहीं खाया गया। अब वो तो बच्चा है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले लाकर चुपके से मुझे दे दो, मैं बच्चों को खिला दूँगी। अच्छा आपा, लेता आऊँगा। और हाँ, याद आया, 2-3 पैकेट दूध के भी ले आना। अम्मा ने सुबह 5 किलो दूध लिया था। ऐसे नदीदे मेहमान हैं, सब ख़त्म करके, जैसे कभी दूध तो मिला ही नहीं था इन्हें। अभी ये बातें हो ही रही थी कि सफ़ोरा आपा की बेटी नुदरत चली आई। अम्मी, आप इधर हैं? नानी कब से आपको तलाश कर रही हैं। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। अलीम ने अलमारी से कुछ निकाला, फिर वो और सफ़ोरा बाहर निकल के। नुदरत इसके पास बैठ गई। मोमानी, आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, वरना पहले मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। शुबाना इसकी बात और अंदाज़ पर खौल गई। झट से बोली, तुम भी बस आज ही अच्छी लगी हो। नुदरत को नई नवेली मोमानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बदमज़ासी हो गई और कहने लगी, नानी कह रही थी बेड तो अच्छा बनवा लिया, सोफ़ा इतना अच्छा नहीं है। जी तो चाहा तबीयत साफ़ कर दे। अभी इस घर में नई नहीं थी, मिजाजों से नावाकिफ़ और बदतमीज़ लड़की आती क्या झगड़ा करती, खामोश हो रही। खिड़की दरवाज़ों के पुराने पर्दे, कमरे की सादगी, ससुराली औरतों की लगा लगा कर की गई बातें सब बर्दाश्त हो जाती हैं। दुल्हन सब कुछ सह लेती है, अगर जो ज़िंदगी का साथी बनने वाला दिल को भा जाए, अगर इसका साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी देते। पहली रात अजीब बेकैफ फीकी फीकी सी लगी। अलीम ने इससे बातें भी की, देर से आने पर माजरत भी की, तोहफ़ा भी दिया और हक़ भी। मगर कुछ कमी तो थी, कहीं कोई बात तो थी कि सुबह तरोताज़ा हंसती मुस्कुराती हुई दुल्हन नहीं, थकी थकी सी उदास औरत थी। इसने लड़की से औरत तक का फ़ासला तय कर लिया था। कुछ तो था, कोई एहसास, कोई कमी, जिसे फ़िलहाल वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। आप बहुत जल्दी बेदार हो गई। सुबह अलीम उठा तो इसे बिस्तर पर बैठे देखकर कहने लगा, वो बता नहीं सकी, मैं तो सारी रात की जागी हुई हूँ। कुछ खाया आपने? इसकी खामोशी के बावजूद अगला सवाल कर रहा था। शुबाना ने सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया। यहाँ मेज़ पर फल मिठाई रखी तो है, कुछ ले लें। तभी सर नफ़ी में हिल गया। अलीम बिस्तर से उठकर बाथरूम चला गया। पानी गिरने की आवाज़ें आती रहीं। दोबारा बरामद हुआ तो नहाया धोया था। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा था और बालों को तौलिए से रगड़ते हुए वो कह रहा था, आप भी नहा लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सुबह सवेरे चाय की आदी नहीं थी। एक लफ्ज़ भी बोलने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। उठकर बाथरूम में चली गई। नहाने में जल्दी के बावजूद कुछ टाइम तो लगा। अलीम चाय लेकर इसका मुंतज़िर होगा, मगर जब बाहर आई तो कमरा खाली था। इसे भूख का एहसास हो रहा था। ख़ुद से मिठाई या फ्रूट लेते झिझक भी हो रही थी। 10 मिनट के बाद अलीम चाय स्नैक्स के साथ कमरे में आकर बोला, मुझे देर हो गई। असल में अम्मा और अब्बा को भी चाय लाकर देनी थी। वो रोज़ जल्दी उठ जाते हैं ना, आज थके हुए थे, देर से जाके। चाय ये बना कर देते हैं? इसे हैरत हुई। फिर ख्याल आया कि घर में 2 बेटों के अलावा है ही कौन, सभी काम करने पड़ते होंगे। चाय बहुत अच्छी थी, शुबाना ने दिल में इतराफ़ किया। ऐसी उम्दा चाय नहीं बना सकती थी। दिन के 10 बज रहे थे जब लोग नींद से बेदार होने लगे। चहल पहल, आवाज़ें, बच्चों की रीं रीं, अम्माओं की डांट डपट, सब आवाज़ें उनके कमरे तक आ रही थीं। अलीम चाय के बर्तनों के साथ बाहर चला गया और वो कमरे में अकेली रह गई। अलीम, ओ अलीम, नाश्ते का क्या इंतज़ाम है? पता नहीं कौन पूछ रहा था। खाला, मैंने नान बाई से कह दिया था, बस अभी पहुंच रहा होगा। तुम्हारे ससुराल से नहीं आएगा क्या? अरे नहीं खाला, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। चलो, छुट्टी हुई, पूछने वाली खासी आवाज़ में बड़बड़ाई। अलीम भैया, हमारे दुपट्टे रंगरेज़ के यहाँ से
लाना थे, कोई लड़की करारी सी आवाज़ में कह रही थी। मुझे याद है, अभी बाज़ार जाऊंगा तो ले आऊँगा। अलीम भाई, मेरा सूट भी टेलर ने आज ही देने को कहा था, वो भी लेते आना। यह आवाज़ शुजात की थी। और एकदम से शुबाना ने सोचा था, सारे काम तो इसे करने चाहिए, आखिर वो दूल्हा का भाई है। यहाँ अजीब ही रिवाज है, कल से देख रही हूँ दूल्हा ही हलकान हो रहा है। भाई, टेलर जिस तरह पकड़ाए इसी तरह मत ले आइएगा, चेक भी कर लीजिएगा। पहले भी एक मरतबा आप ऐसे ही उठा लाए थे, एक बटन टूटा हुआ निकला था। अंदाज में तमस्खर ही तमस्खर था। हाँ हाँ, देख के लाऊंगा। अलीम की संजीदगी ज्यों की त्यों थी। अलीम, दोपहर के खाने का एक मरतबा फिर कह कर आना और ताकीद करके आना, वक्त पर पहुँचाते हैं। एक तो तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं आता। फ़िक्र ना करें अब्बा जी, खाना वक्त पे पहुँच जाएगा। ए अलीम, आ गया तो कमरे से बाहर, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ज़रा मोहल्ले के डॉक्टर हामिद का क्लिनिक तो देख कर आ, खुला है तो ले चल। लग रहा है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दवा लेकर आऊँ। अम्मा जान, अगर ऐसी बात थी पहले बुलवा लिया होता। अलीम के अंदाज में फ़िक्र ही फ़िक्र थी। अम्मा ने सोचा दुल्हन के चाव चौंचलों में मसरूफ़ होंगे, पता नहीं सुनते हैं या नहीं। ये शुजात था। शुबाना को इसका अंदाज़ बेहद बुरा लगा, ख़ासकर बात के इख्तिताम पर तंज़ भरी हंसी। अम्मा, आप चादर लेकर आ जाएं, क्लिनिक खुला ही होगा। शुजात, ज़रा अपनी मोटरसाइकिल की चाबी तो दे दो, बहुत से काम हैं। सवारी अपनी होगी तो मसला नहीं होगा। अच्छा चलें, ले लीजिए, पेट्रोल खुद डलवाना होगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ, डलवा लूँगा। अंदाज में तशक्कुर ही तशक्कुर था। कमरे में रखी होगी कहीं, चाबी खुद ही ढूंढ लीजिए, कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ। भाई जान को मुफ्त की सवारी का चस्का पड़ गया है। अलीम के जाने के बाद शुजात हंसी के दरमियान किसी से कह रहा था। अलीम की वापसी शाम 4 बजे हुई। सबसे पहले अम्मा को चेकअप के बाद घर छोड़ा था। इसके बाद सबकी फरमाइशें सुनकर बाज़ार रवाना हुआ। दोपहर का खाना शुबाना ने अकेले ही खाया। इस पर कोफ्त सवार थी। जी चाहता था यहाँ से वापस चली जाए, मगर कहाँ। वापसी का रास्ता तो बंद हो चुका था। बेबसी के एहसास ने कई मरतबा इसकी आंखें नम की। शाम को थके हारे अलीम की वापसी हुई। मेरी शर्ट लाए हैं, मेरे दुपट्टे मिले, मेरी मैचिंग की ज्वेलरी, मेरे बेटे का सेरेलैक, भांत भांत की आवाज़ें थीं। प्लीज़ नुदरत बेटा, एक कप चाय का बना दो, सर में सख्त दर्द है, लजाजत से कहा गया। मामू, मैंने तो अभी नेल पॉलिश लगाई है। अच्छा सबूही, मेरी अच्छी बहन, तुम ही बना दो। भाईजान, मुझे तो अभी नहाना है, आप किसी और से कहते हैं। इसने किसी और से नहीं कहा। कुछ देर बाद खाने की ट्रे के साथ कमरे में आया और शुबाना से बोला, आपने खाना खा लिया? इसने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। मुतमईन होकर ट्रे मेज़ पर रखकर सामने बैठ गया। शुबाना ने देखा दोपहर वाला खाना था और गर्म भी नहीं किया गया था। सर झुकाए तेज़ी से खा रहा था, चेहरा थकन और भूख से उतरा हुआ था। अलीम, मेरी दवाई भी लाई कि नहीं? अम्मा कमरे में पूछने चली आई। वो तो मैंने इसी वक्त आपसे कहा था किसी को कहकर करीबी मेडिकल स्टोर से मंगवा लें, और मैंने भी तुम्हें इसी वक्त बता दिया था घर में कोई फारिग नहीं है। साफ कहो माँ की दवाएं भूल गए, अब मैं ऐसी भी फालतू हो गई हूँ। अम्मा, अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हैं। मैं खाना खा कर ला देता हूँ। और ये खाना पकवाया है तुमने? किसी काम का नहीं, सारे रिश्तेदार बातें बना रहे थे। शुजात ने बमुश्किल जहर मार किया। अच्छा, मुझे तो ठीक लग रहा है। तुम्हारा क्या है, जो भी तुम्हारे आगे रख दो तुम्हें ठीक ही लगता है। अब जल्दी जल्दी खाओ और दवाएं ला दो, वो कहकर चली गई। शादी के तीसरे रोज़ अलीम की छुट्टी ख़त्म हो गई। वैसे वो घर पर था, तब भी शुबाना के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था। इसके काम ही कहाँ ख़त्म होते थे। दिन स्कूल में गुजार कर दोपहर को वापस आया, हाथ में कापियों का अंबार था। कैसा गुजरा दिन? अपनी थकन परे धकेल कर मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जैसे रोज़ दिन गुजरते हैं वैसे ये भी गुजर गया। उसने बेजारी और संजीदगी से जवाब दिया। आज शाम को अगर शुजात जल्दी आ गया तो कहीं बाहर चलेंगे, इसकी मोटरसाइकिल ले लेंगे ना। खामखा वजाहत की। शुजात तो कभी 12 से पहले घर में दाखिल नहीं होता, आज कैसे आ सकता था। इसने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। इससे चाय खाने वगैरह के बारे में पूछने लगी। आप लेकर आएंगी? हाँ, तो मुझे क्या है। मेरा मतलब है अभी आप नई नवेली दुल्हन हैं, काम करने को तो उम्र पड़ी है,
آپ بیٹھیے، میں خود لے کر آتا ہوں۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ کھانا لینے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ مہمان جا چکے تھے۔ آخری مہمان جو آج ہی رخصت ہوئے وہ صفورہ آپا کی فیملی تھی۔ اب گھر میں خاصا سکون تھا، مگر شبانہ کو جس طرح شور و وحشت زدہ کرتا تھا اس طرح یہ خاموشی بھی کھل رہی تھی۔ حیرت اور اتفاق کی بات تھی، آج شجاعت جلدی گھر آ گیا۔ کاپیاں چیک کرتے علیم نے سب کام ایک طرف رکھے اور بولا، بس جلدی سے تیار ہو جائیں، میں بھی چابی لے کر آتا ہوں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ خود بہت بور ہو رہی تھی، جلدی سے الماری کی جانب بڑھی اور کپڑے منتخب کرنے لگی۔ شجاعت، آج جلدی آ گئے؟ کمروں سے آگے برآمدے میں علیم شجاعت سے مخاطب تھا۔ ہاں، سر میں کچھ درد ہے اس لیے جلدی آ گیا۔ اچھا تم آرام کرو، موٹر سائیکل کی چابی تو دے دو، دراصل تمہاری بھابھی کو ذرا گھمانے لے کر جانا ہے، جلدی آ جائیں گے۔ بڑا شوق ہے بھابھی کو موٹر سائیکل کی سواری کا۔ شجاعت کے انداز پر ہینگر کی جانب بڑھتے شبانہ کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں، بس میں نے سوچا جب سے شادی ہوئی ہے کہیں نکلے ہی نہیں، آج تم جلدی آ گئے تو سوچا ذرا سیر کر آتے ہیں۔ شہر میں تھوڑی بسیں ویگنیں چلتی ہیں، اگر اتنا ہی شوق تھا تو منگوا لیتے جہیز میں، ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی، اسے بھی جہیز دینے میں ڈنڈی مار کے۔ شبانہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ہوتا کون تھا ایسی بات کہنے والا؟ الماری کے پٹ بند کر کے وہ پھر بیڈ پر آ بیٹھی، اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو بھائی، چابی مل گئی ہے۔ ہنستا مسکراتا کی رنگ انگلی پر گھماتا علیم کمرے میں داخل ہوا۔ شبانہ نے قہر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بولی، میں تو کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آئندہ آپ کے بھائی کی شاہی سواری پر کہیں جاؤں گی۔ آپ کو اگر اتنی باتیں سن کر بھی جانے کا شوق ہے، اکیلے ہی چلے جائیں۔ اوہو، آپ نے برا مانا، شجاعت کی عادت ہے، وہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، بہرحال اس کی طرف سے میں سوری کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کیوں سوری کر لیتے ہیں؟ اور چاہے کچھ بھی ہو، میں تو اس موٹر سائیکل پر کہیں نہیں جاؤں گی۔ او اچھا، پھر؟ میں نے تو سوچا تھا آپ کو کہیں سیر کروا لاتا ہوں۔ علیم سے بات نہیں بن رہی تھی، گھبراہٹ میں پیشانی مسل رہا تھا، پھر بیچاری سی نظر شبانہ پر ڈالی اور بولا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی ہاں، بالکل آخری فیصلہ ہے۔ آپ جا کر چابی واپس کر دیجئے۔ وہ بیٹھے سے لیٹ گئی۔ علیم کچھ دیر حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو آ کر کرسی کھینچی اور اپنی میز پر رکھی کتابوں میں سے ایک لے کر بیٹھ گیا۔ گھر میں شبانہ کی ساس کے علاوہ اور تو کوئی عورت تھی نہیں۔ انہیں کام کرتے دیکھ کر آرام سے بیٹھے رہنا شبانہ کو اچھا نہیں لگا۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ کچن میں آ گئی۔ وہ بھی شاید منتظر ہی تھی، مروتاً بھی اسے چند دن آرام کرنے کو نہیں کہا۔ اوہو، آج تو کچن میں بڑی ہی رنگینی ہے۔ اس روز شجاعت دوپہر میں علیم سے ہی پہلے گھر آ گیا تھا۔ اسے یہاں مصروف دیکھا تو کہنے لگا۔ شبانہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کے دل میں شجاعت کے لیے گرہ پڑ چکی تھی اور وہ اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ آج میرے پاس ٹائم ہے، کہیں گھومنے چلنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شبانہ نے اب کیس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولا، میرے ساتھ چل کر دیکھیں، مزے کروا دوں گا۔ بھائی بیچارہ لے کر جائے گا تو زیادہ سے زیادہ ایک کوک، ایک میٹھا پان کھلا دے گا اور بس۔ انداز میں علیم کے لیے تمسخر تھا، جو شبانہ کو بے حد برا لگا۔ بولی، اب بھی کچھ نہیں؟ ہاں تو پھر چل رہی ہیں؟ نہیں، اس نے مختصر کہا۔ کوکر میں پکا گوشت چیک کرنے لگی۔ مرضی ہے، ویسے اب بھائی کی طرح بور لگتی تو نہیں۔ میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ جانے کو اچھا سمجھتی ہوں، مگر ہم بھی تو غیر نہیں۔ مجھے صرف علیم کے ساتھ جانا ہی پسند ہے، وہ بھی آپ کی موٹر سائیکل پر نہیں۔ او اچھا، میری اس روز کی بات کا برا مانا۔ ارے علیم اختر کی بیگم اور اتنی اونچی ناک، بھائی کو تو خاندان کا بچہ بچہ باتیں کہہ جاتا ہے۔ ضروری تو نہیں میرا مزاج بھی علیم جیسا ہو۔ وہ آخر تلخ ہو ہی گئی۔ مشکل ہو جائے گی، کس کس کو روکو گی، کس کس کی زبان پکڑو گی؟ تمہارا شوہر تو ہر بات ہنس کر سہ جانے والا ہے۔ وہ آپ سے بہت جلد تم پر آ گیا۔ آپ چل کر اماں کے پاس بیٹھیے، ابھی کھانا تیار ہونے میں تھوڑی دیر ہے۔ اس نے بات پلٹ دی۔ کیوں؟ میں کچن میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ یہ میرے گھر کا حصہ نہیں ہے؟ انداز ہٹ دھر میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ گرمی ہے، مرضی ہے آپ کی۔ رکھائی سے کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بڑا خیال ہے آپ کو میرا، پتہ نہیں کیوں وہ جگہ چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ آپ کا نہیں، اپنا خیال ہے۔ ایسی باتیں سن کر دماغ تپ جاتا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے۔ او اچھا، چلیے
फिर आपका एहसास करके हम चले जाते हैं। उफ़ खुदाया, ये क्या मुसीबत है, एक ही घर में रहना है, ऐसे अजाब के साथ गुजारा क्यों कर होगा। इसके जाने के बाद वो खौलते जहन के साथ सोच रही थी। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। ये भी देख लिया तो घर में अलीम की निस्बत शुजात की अहमियत कहीं ज़्यादा है। वो कोई ऐसी ऊंची पोस्ट पर तो था नहीं। हाँ, एक महकमे में ज़रूर था जहाँ ऊपर की आमदनी के ज़राए बहुत से थे और वो फ़ायदा उठाना भी खूब जानता था। अलीम की निस्बत घर में ज़्यादा पैसे देता था, अपनी मर्ज़ी का मालिक था। वो अब्बा जो बात बात पर अलीम को डांट टपट कर सकते थे, शुजात के सामने बड़े दबे दबाए रहते थे। लिहाज करना वो जानता ही नहीं था। रात गए लौटता और कोई भी ऐसा नहीं था जो इतनी देर बाहर रहने पर इससे बाज़-फुर्स करता। इसके फ़ोन अक्सर आते रहते थे, जिसमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की होती थी। अब तो ज़्यादातर फ़ोन शुबाना अटेंड करती और इससे इन लड़कियों पर सख्त गुस्सा आता। शुजात घर पे होता, वो भी फ़ोन से ही चिपका रहता। अब कुछ दिनों से शुबाना ने महसूस किया वो जल्दी घर आने लगा था और जिन नज़रों से वो शुबाना को देखता था वो इसे खौला के रख देती थी। कैसा है ये शख्स, इसे ये भी एहसास नहीं मैं इसके भाई की इज़्ज़त हूँ, इस घर की बहू हूँ। अब वो बड़ी खुश मिजाजी से इसके साथ बातें भी करने लगा था। मगर शुबाना का वही लिया दिया अंदाज था। इन्हीं दिनों में आपा सफ़ोरा उनकी बेटी नुदरत चली आई। अरे आज तो शुजात भी घर पर है। जब घर से चली थी तो ये दुआ की थी, अल्लाह मियाँ मेरा शज्जी भी घर पर हो। हाँ भाई, अब तो शुजात अक्सर जल्दी घर आ जाता है। अम्मा भी खुश होकर बताने लगी। लगता है ये तब्दीली भाभी की आमद से हुई है, सफ़ोरा ने आम से अंदाज में मजाक के रंग में कहा था। शुबाना अंदर तक हिल गई। जी हाँ, हम तो इसी शौक़ में घर में रहते हैं। भाभी साहिबा हमें लिफ्ट ही कहाँ करवाती हैं, एक आँख नहीं भाते हम इन्हें। है क्यों भाभी, तुम्हें शायद ये पता नहीं, शज्जी हम सबकी आँख का तारा है। जितने लाड हमने इसके उठाए हैं दुनिया में कम ही किसी बच्चे के से उठाए गए होंगे। ये नाजुक मिजाज भी है, ज़रा भी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए बीमार पड़ जाता है। सफ़ोरा बड़ी संजीदगी रूखेपन से इसे बता रही थी। अभी बातें हो ही रही थी कि अलीम चला आया। बसों वैगनों में सफ़र की बदौलत इस वक्त इसका बुरा हाल था। बिखरे बाल, शकन आलूद लिबास और चेहरे पर थकन और पसीना। शक्ल तो ठीक थी, चेहरे पर जो मस्कीनी और कुछ हिमाकत का तासुर था वो सूरत के असर को ज़ाइल कर देता था। और इस वक्त तो सूरत हाल खासी अबतर हो रही थी। बहन और भांजी को देखकर मुसर्रत का इजहार किया। अम्मा बोली, खाली खोली खुशी होते रहोगे, कपड़े बदलो, मुँह हाथ धो, बाज़ार से शामी कबाब लेकर आओ। शुबाना ने भिंडियाँ बनाई हैं और भिंडियाँ नुदरत तो खाती ही नहीं, शज्जी को भी कुछ ख़ास पसंद नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ, बस ज़रा मुँह धो लूँ। मामू, आजकल खरबूजे बड़े मीठे आ रहे हैं, वो भी लेते आइएगा। ठीक है, और कुछ? अली मुस्कुराया। और शाम को आपके साथ आइसक्रीम खाने जाऊँगी। अच्छी बात गुड़िया, ले चलेंगे। अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, शुक्र है। तुम्हें आज माँ का ख्याल भी आया, कुछ पता भी है? आज कितने दिन हो गए तुमने मेरे सर में तेल नहीं डाला। मुझे तुमसे सर की मालिश करवा कर ही सुकून मिलता है। अच्छा अम्मा, आज ही डाल दूँगा। अलीम, तुम भी अम्मा की तरफ से लापरवाही बरतने लगोगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। सफ़ोरा की आवाज़ ही नहीं, चेहरा भी दुख की तस्वीर बन गया था। नहीं आपा, भला ही कैसे हो सकता है, वो तो पिछले दिनों कुछ काम का बोझ रहा। बस बेटा, रहने दो, सफाइयाँ मत पेश करो। काम क्या पहले ज़्यादा नहीं हुआ करता था? बस अब क्या कहूँ, सच तो यही है, बेटे शादी के बाद अपने नहीं रहते। शुबाना को बुरा तो लगा, बोली कुछ नहीं। किचन में जाकर रोटी पकाने लगी और वो यहाँ खड़ी भी जानती थी अलीम गड़बड़ाकर सफाइयाँ दे रहा होगा और इनमें से किसी पर भी इसकी बात सुनने मानने पर तैयार नहीं होगा। इसे अलीम से ज़रा भी हमदर्दी महसूस नहीं हुई। सोचा ठीक है, ऐसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। रेत की दीवार, मिट्टी का माथो, अपने साथ मुझे भी जलील करवा रहा है। जब अलीम कबाब और खरबूजे लेकर किचन में आया, वो आखिरी रोटी तवे पर डाल रही थी। इससे कुछ भी कहे बगैर इसने पहले कबाब प्लेट में रखे, जल्दी जल्दी बड़ी महारत से खरबूजे काटने लगा। खाने के बाद सफ़ोरा ने सिवैयों के जर्दे की फरमाइश कर दी। अम्मा ने भी कहा, बहू तुम्हें खुद ही ख्याल से मीठा बना लेना चाहिए था। इसने सोचा ज़रूर आप ही कह देती, मगर बोली कुछ नहीं। घर में किचन अम्मी की जिम्मेदारी था, भाभी भी काम करवा देती थी और वो तो वही करती थी जो इससे कहा जाता था। खुद से कोई जिम्मेदारी सर लेने का ख्याल नहीं आता था, इसलिए आज ऐसी चूक हो गई।
सेवइयाँ बना कर लाई शुजात ने अचानक रास्ते में टांग फैलाती। वो गिरते गिरते बची। जानबूझकर गरम गरम सेवइयों वाला बर्तन इस पर उंडेल दिया। इतनी गरम सेवइयाँ इसकी तो चीखें निकल गईं, मगर इसे रास्ते में बड़ी शौक़ी से टांग फैलाती भी सबने देखा था। शुबाना को इल्ज़ाम नहीं दे सकता था और ना ही कोई ये समझ सकता था कि बर्तन जानबूझकर उंडेला गया है। शुजात की हाय वाय इसे मसरूर कर रही थी। आइंदा ऐसे घटिया हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वो तो मैं संभल ना सकती तो इस खबीस के ऊपर गिरती। और वो यही तो चाहता था। गैरत इस शख्स में नाम को भी नहीं। खाने के बाद ढेर बर्तनों का धोकर रखा। रात के लिए अम्मा ने बिरयानी बनाने को कहा था। मसाला तैयार किया। जब सोने के लिए कमरे में आई, थकन और नींद से बुरा हाल था। अलीम अम्मा के कमरे में था। इन सब की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बिस्तर पर लेटी और फ़ौरन ही सो गई। शाम को आँख खुली, अलीम तब भी बराबर में मौजूद नहीं था। कमाल है, अब तक बातें हो रही हैं। वो उठकर बाहर आई। शुजात जले हुए चेहरे और हाथों बाजुओं पर नील थोपे भूत बना बैठा था। करीबी अम्मा और सफ़ूरा मौजूद थीं। नुदरत और अलीम गायब थे। बहू, कब से मुंतज़िर बैठे, चाय तो बनाओ। तुम्हारे अब्बा भी मस्जिद से आते होंगे। नुदरत कहाँ है? वो अलीम के बारे में नहीं पूछ सकी। अपने मामों के साथ आइसक्रीम खाने गई है। अच्छा, तो चले गए? क्या मुझे नहीं जगा सकते थे? मैं भी चली जाती तो इन सबको चाय बनाकर कौन पेश करता? इसका जहन खौल उठा। खामोशी ज़रूरी बल्कि मजबूरी थी। हाय, कितनी तकलीफ़ पहुंची मेरे भाई को। अम्मा देखिए तो, आँखों के गिर्द हल्के पड़ गए। ये हाँ चज्जी, ये तुम्हारी आँखों के गिर्द स्याह हल्के मैं कई रोज़ से देख रही हूँ। खैर तो है, नींद तो ठीक से लेते हो ना? बस अम्मा, सर में दर्द रहता है। ए चांद, तेल डाल लिया करो ना, खुश्की हो गई होगी। मुझे तेल डालना कहाँ आता है अम्मा, मैं डाल देती हूँ। अब बाएं बाजू में तकलीफ़ रहती है ना, ये काम नहीं कर सकती। अलीम से या शुबाना से डलवा लेना। अलीम भाई कहाँ फ़ारिग होते हैं? हाँ, भाभी बेगम को अगर नागवार ना गुजरे तो ठीक है। वो इसकी तरफ देखकर जिताने के अंदाज में कह रहा था। भाभी को क्यों एतराज़ होने लगा? ये भी कोई काम है? वाह, क्या रिवायतें, क्या रिवाज हैं। मैं देवर के सर में तेल डालूं, हुक्म भी सास मोहतरमा दे रही हैं, मगर ये बात कभी नहीं मानूंगी। वो किचन में चली गई। शुबाना, साथ में कुछ पकौड़े भी बना लेना। पीछे से सफ़ूरा की फरमाइश नशर हुई। तौबा, इतनी गर्मी में पकौड़े भी बनाओ। इसने सर को झटका दिया और बेसन निकालने लगी। चाय बनाकर जब सबको पेश कर रही थी, नुदरत और अलीम भी चले आए। हाय, बड़ा मज़ा आया। नुदरत खुश थी। पकौड़े देखे तो आहा, पकौड़े कहकर प्लेट अपने सामने कर ली और बोली, चाय के बगैर मज़ा नहीं आएगा। मुमानी, मेरे लिए भी एक कप बना लाए। इसने अपना कप इसे थमा दिया और ख़ुद काम के बहाने किचन में चली आई। अलीम को भी चाय पीनी है या नहीं, इसने नहीं पूछा। कुछ देर किचन में ठहर कर अपने कमरे में आई। नहाकर कपड़े तब्दील करने का सोचते हुए अलमारी खोली। कपड़े निकाल कर बेड पर रखे। हाथ की अंगूठी और गले की चेन उतार कर ड्रेसिंग टेबल की दराज में डालने लगी। अरे, मेरी झुमकियाँ! खाली दराज देखकर दिल धक से रह गया। अभी रात को ही तो इसने उतार कर रखी थी, सुबह पहनना याद नहीं रहा। जल्दी जल्दी सारा कमरा देख डाला। हालांकि इसे अच्छी तरह याद था झुमकियाँ इसने दराज में ही डाली थी। क्या हुआ? क्या तलाश कर रही हैं? अलीम यकीनन किसी काम से ही कमरे में आया होगा। मेरी झुमकियाँ नहीं मिल रही हैं, रात को मैंने दराज में रखी थी। अब भूल गई होंगी, कहीं और रखी होंगी। मगर मैं भूल भी गई हूँ तो सारा कमरा छान मारा है, नहीं मिल रही। और आज तो काम वाली भी नहीं आई। आप बैठ जाएं, मैं तलाश करता हूँ। अब वो एक एक कोना खुदरा देखने लगा। बिस्तर तक झाड़ डाला, इसकी झुमकियाँ नहीं मिली। अलीम ने ही बाहर जाकर बाकी अफराद को इस गुमशुदगी की इत्तला दी। यहीं कहीं होंगी, किसी ने कुछ ख़ास नोटिस नहीं लिया। वैसे भी वो इसकी जहेज़ की थी और इसने गोल्ड के सेट के अलावा ये बड़े शौक़ से घर में पहनने के लिए बनवाई थी। कहाँ जा सकती हैं? सोच सोच कर सर दुखने लगा। और अपने सवाल का जवाब इसे तीसरे रोज़ मिला। रात को गर्मी बहुत थी, लाइट की भी आंख मचोली जा रही थी। अब कि लाइट आई, वो फ़ौरन पानी पीने कमरे से बाहर निकली। किचन तक जाने के रास्ते में शुजात का कमरा पड़ता था। गर्मी की वजह से इसने न सिर्फ खिड़कियां दरवाजे खोल रखे थे, बल्कि पर्दे भी हटाए हुए थे। और वो सिगरेट में कुछ भर रहा था। वो तो क्या समझती, मगर इसे यहाँ से गुजरते देखकर वो फुर्ती से उठा और बाहर आकर इसका रास्ता रोक लिया। खबरदार,
जो किसी से जिक्र किया, वरना बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। क्या करोगे तुम? वो निडर थी। खामखा इससे दबती भी क्यों? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिस खबासत से कहा था, मज़ीद समझाने की गुंजाइश ही कहाँ बाकी रही थी। तुम घटिया नीच इंसान, मैं अलीम से तुम्हारी शिकायत करूँगी। मैंने कहा ना, चुप रहो। अभी आवाज़ देकर सबको इकट्ठा करके कह सकता हूँ। ये मेरे कमरे में आई थी, जब से इस घर में आई है मुझ पर डोरे डालने की कोशिश में है। हाँ वाकई वैसा कर सकता था। नशेबाज बेगैरत हुआ करता है। उल्टे कदमों वापस लौट आई। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, साथ ही गुस्से से इसका बुरा हाल था। कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर बैठकर अलीम को झंझोड़ने लगी। अरे क्या हुआ आपको? आप तो रो रही हैं। कोई ख्वाब देखा है क्या? ऐनक लगाने के बाद इसका जायज़ा लेते हुए पूछ रहा था। जवाब में इसने शुजात की हरकत और बातें से बता दी। अच्छा, शुजात ने आपसे ऐसा कहा? यकीन नहीं आता। इसकी आवाज़ पस्त और डूबती हुई सी थी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसका तो ख्याल था अलीम सुनते ही तैश में आ जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बस इतना कहना चाहता हूँ, वो लाडला है और छोटा है, गुस्से का तेज़ है। आपने इसे सिगरेट पीते देख लिया, डर कर इसने ऐसी धमकी दे दी। इसे जहन पर सवार न करें, सो जाएं। अब शज्जे की तरफ से मोहतात रहा करें। वो ढीला ढाला हुक्म का ग़ुलाम ठंडे मिजाज का आदमी था। इसमें गैरत की इस कदर कमी है। वो इतना बुज़दिल है, शुबाना सोच भी नहीं सकती थी। मिट्टी का माधो, रेत की दीवार हो, हवा चले और ये बिखर जाए। मैं मिट्टी के माधो की पनाह में हूँ, मैं रेत की दीवार के साए में बैठी हूँ। ये तो बेकार है। मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो मेरा साइबान भी ना बन सके। अलीम पता नहीं वाकई सो गया या सोता बन गया। फिर वो नहीं सो सकी। सुबह घर के मर्द चले गए तो इसने अपना बैग तैयार किया और अम्मा से बोली, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। किसकी इजाज़त से? यह अचानक क्या सूझी तुम्हें? बस ज़रूरी काम है। इसके अंदाज में, इसके चेहरे पर ऐसी गैरियत और खुरदरापन था कि वो चुप हो रही और ये मैके आ गई। अकेली आई हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं अलीम से झगड़ कर तो नहीं आई? दिमाग तुम्हारा वैसे ही गर्म रहता है। अम्मा देखते ही शुरू हो गई और वो रोने लगी। आंसुओं में इसने बस इतना कहा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आइंदा आप लोग मुझसे इस मौजू पर बात ना करें। ए है, दिमाग ख़राब हो गया? खुदा ना करे कि तू वहाँ वापस ना जाए। तुम्हारा घर है वो, वहाँ आबाद रहने में ही तुम्हारी इज्जत है। इज्जत ही तो ख़तरे में है अम्मा। इसने रोते हुए सारी बात बताती। सुनकर वो चुप हो गई थोड़ी देर के लिए, फिर कहने लगी, उस घर में सिर्फ तुम दोनों अकेले ही तो नहीं हो। तुम्हारी सास ससुर हैं, फिर सबसे बढ़कर अलीम है। बस तुम इस घटिया इंसान की मुँह ना लगा करो। मैं कब बात करती हूँ इससे? किसी न किसी बहाने मेरे आसपास रहने की कोशिश करता है। और वो अलीम, वो मर्द नहीं, डमी है, बेजान बुत है। कभी बुत भी किसी की हिफाजत कर सकता है? गुस्से में हो, इसीलिए इस वक्त तुमसे बात करना बेसुध है। जाओ कमरे में जाओ, कुछ देर आराम करो। जब तुम्हारा मिजाज ठिकाने पर होगा फिर बात करेंगे। आपने कभी मेरी बात समझी है जो अब समझेंगी? भाभी कहाँ हैं? उन्हें बुलाएं। 2 रोज़ के लिए अपने मैके गई है। और सुनो, ये किस्सा लेकर बाप और भाई के सामने मत बैठ जाना। मर्द गुस्से के तेज़ होते हैं। ऐसे गलत कदम उठा बैठे फिर सारी उम्र सर पे हाथ रख कर रोना पड़े। हाँ, मर्द वाकई ऐसी बातों को कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। गैरत के मामले में जान लेने और जान देने से भी गुरेज नहीं करते। और एक वो मर्द है जिसे तकदीर ने मेरे नाम कर दिया। अलीम का ख्याल आते ही नफ़रत और बेजारी की लहर तन बदन में दौड़ गई। अम्मा के कहने पर वो कमरे में आकर लेट तो गई। जो आग और जैसी मायूसी इसके तन बदन में उतर गई थी वो चैन नहीं लेने देती थी। शुजात का ख्याल आते ही वो जलने भुनने लगती। अलीम के मुतालिक सोचकर शिकस्तगी तन बदन पर तारी हो जाती। शाम को अब्बा और भाई घर आए। इसे देखकर खुशी का इजहार किया। इसका बुझा बुझा अंदाज चौंका गया। क्या बात है? शुबाना बड़ी खामोश है। बेटा, तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना? अब्बा पराए घर को मेरा घर क्यों कहते हैं? वो पराया घर नहीं, तुम्हारा अपना घर है, भाई ने समझाया। छोड़िए ये सब कहने की बातें। अच्छा जाओ चाय बनाओ। देखती नहीं दोनों थके हुए वापस लौटें। थकन तो बेटी को देखकर ही उतर गई। और जब बेटी के बारे में ये सुनेंगे कि हमेशा के लिए आ गई है, फिर ये थकन बहुत बढ़ जाएगी। वो सिर्फ सोच कर रहेगी।
अभी चाय बना रही थी कि दरवाजे पर बेल हुई। फिर आती आवाज़ों ने बताया घर में मेहमान आए हैं। ज़रा देर बाद ही से अंदाज़ा हो गया ये आवाज़ इसके ससुर और नंद आपा सफूरा की थी। खुद आने की हिम्मत पैदा नहीं कर सका, इन दोनों को भेज दिया। इसे बहुत अफसोस हुआ था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अपनी सोचों में घिरी यहीं बैठी रही, बाहर निकलकर सलाम करने की ज़रूरत नहीं समझी। कुछ देर बाद अम्मा चली आईं। आते ही बोली, आवाज़ों से तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। ये मेरी तरबियत तो नहीं कि बड़ों का एहतराम ना किया जाए। चलो चल कर सलाम करो। क्यों आए हैं ये लोग? तुमसे मिलने आए हैं, सख्त खफा भी हैं, यूँ अचानक तुम चली आई हो। अम्मा वजह तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बेटा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, अब फिर कहती हूँ, ससुराल में कदम जमाने के लिए बहुत हिम्मत, सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है। वहाँ मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों से पाला पड़ता है। अच्छी लड़की वही है जो इन सब मुख्तलिफ़ मिजाज वालों के दरमियान अपनी जगह बना सके। अम्मा वो बद किरदार है, मुझ पर भी बुरी नज़र रखता है। वो अभी ना समझ है, जवानी के जोश में सही गलत की पहचान भूल चुका है। अपनी सास पर जोर दो कि जल्द ही इसकी शादी कर दें। अगर इसके रिश्ते का सिलसिला भी कहीं चल निकलेगा तो भी इसका ध्यान बढ़ जाएगा। वो शैतान का चेला है, आप इसे नहीं समझ सकती। अच्छा चलो, घर आए मेहमानों से तो मिल लो, सलाम कर लो उन्हें और चाय लेकर आओ। अम्मा इतना कहकर किचन से चली गई। जिस वक्त वो चाय लेकर आई, सामने आपा सफूरा बैठी थी और उनके चेहरे पर सख्ती, तनफ़ुर इसने एक नज़र में ही देख लिया। इसने सलाम किया, जवाब देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। बोली, बीबी ये कोई तरीका है? जब जी चाहा बैग तैयार किया, मुंह उठाकर मैके चली आई। अम्मा को तो तुम किसी गिनती में शुमार ही नहीं रखती और अलीम से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं समझी। उसी के मैके में बैठकर इसके अपनों के सामने कितने बुरे तरीके से बात कर रही थी और इसके ससुर बराबर हाँ में हाँ मिला रहे थे। शुबानों को भी गुस्सा आ गया, बड़ी रुखाई से बोली, हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं मज़ीद ठहर ही नहीं सकती थी। क्यों, ऐसा क्या तूफ़ान आ गया था? इस तहज़ाइया अंदाज में सवाल हुआ। फिर वो अम्मा की तंबीह के बावजूद खामोश नहीं रह सकी, सब कह दिया। झूठ, बकवास। अगर तुम अलीम के साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो। इस घर से जान छुड़ाने के लिए मेरे मासूम शुजात का नाम मत लो। हमने ही पहचान में गलती की, ऐसे घर में भाई का रिश्ता कर दिया, धोखा खा के। हमने ये नहीं देखा कि लड़की तो अव्वल रोज़ से ही बेजार दिखाई देती है, हम इसे शर्म समझते रहे। ये तो अब मालूम हुआ कि यहाँ मामला ही कुछ और था। खाला, तुमने लड़की की मर्ज़ी तो मालूम कर ली होती, बिला वजह हमारे घर में रिश्ता तय कर दिया। सफूरा की ज़ुबान मुसलसल शोले उगल रही थी। वो किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर इस पर कीचड़ उछाल रही थी। और ये तो इसने सोचा भी नहीं था, पाकबाज होते हुए भी वो यूँ घर के सब रिश्तों के सामने मुजरिम ठहराई जाएगी। उनकी मज़ीद सुने बगैर सफूरा बकती झकती रुखसत हुई। तब वो रोने लगी। भुगतो अब, कितना कहा था खामोश रहो, तुमने मेरी एक नहीं मानी। इतनी बड़ी बात हो गई शुबाना की अम्मा, तुमने हमें बताया तक नहीं। अब्बा रंजीदा थे। क्या बताती, बताने वाली बात भी क्या थी? मैं तो सोच रही थी इनके घर से कोई आएगा, बात सुलझ जाएगी, ये दोबारा अपने घर चली जाएगी। इसने तो नंद के सामने ऐसी बातें करके अपनी किस्मत आप बिगाड़ ली। अम्मा, क्या आप इसे ऐसे घर में भेजना चाहती हैं जहाँ वो बदमाश रहता है? बेटा, अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसने इसे नशा करते देख लिया, उसने डर कर ऐसी धमकी दे डाली। अब जबकि इस धमकी के जवाब में इतना बड़ा कदम उठाकर अपना घर बार छोड़कर यहाँ चली आई है, इससे शुजात को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी हिम्मत और जुर्रत वाली है। वो तो आइंदा ऐसा सोचेगा भी नहीं। इसने बात ही बिगाड़ डाली। इसकी नंद बड़े गुस्से में गई है। ससुर को भी मैंने अच्छे तेवरों में नहीं देखा। भला इन लोगों से कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो सोचे बैठी थी कह दूंगी, अलीम से थोड़ी खटपट हो गई है। अब ये ज़िद लगाई बैठी है, जब तक वो ख़ुद लेने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। और जब अलीम आता फिर हम ख़ुद तरीके से इससे बात कर लेते। बहरहाल जो भी हुआ हो गया। इसने ससुराल वालों को सब बताकर अच्छा नहीं किया। ससुराल वालों को सब बताकर अच्छा किया। बेटी मुझ पर ऐसी भारी नहीं है, मैं इसे ऐसे बदजातों में नहीं भेजूंगा। हकीम साहब के फ़ैसले पर शुबाना ने सुकून का सांस लिया। वो ख़ुद भी इस घर में जाना नहीं चाहती थी। इसे शुजात की ढिठाई और अलीम की बेहिसी दोनों ही से खौफ आने लगा था।
وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کا کھانا پکانے کو بھی جی نہیں چاہا۔ یقیناً یہی کیفیت اماں کی بھی تھی، اسی لیے کھانا بازار سے منگوایا گیا۔ اب منہ چھپائے کیوں پڑی ہو؟ آ جائے گا ایک دو روز میں علیم۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا بھی کچا نہیں ہوا کرتا، اور تم جیسی بیوی بھلائی سے مل سکتی ہے۔ اماں ٹرے میز پر رکھ کر اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے تسلی دے رہی تھیں۔ آپ اسے نہیں جانتی، بزدل بھی ہے، کم عقل بھی۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اماں، جب میں نے شجاعت کی اس گری ہوئی حرکت کے بارے میں اسے بتایا تو بجائے بھائی سے باس پرس کرنے کے مجھے محتاط رہنے کو کہہ دیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی ہیں وہ کتنا کم ہمت اور بے حس ہے۔ اس نے ماں کو کئی واقعات سنا ڈالے۔ بس بیٹا، والدین بیچارے تو بیٹیوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ ہم نے بھی علیم کی شرافت، سعادت مندی دیکھ کر ہی رشتہ دیا تھا۔ کیا پتا تھا اس کی خوبیاں نہیں، کمزوریاں ہیں۔ اماں پلیز، اب مجھے اس گھر میں جانے کے لیے مت کہیے گا۔ میرے لیے وہاں صرف خوف اور مایوسی ہے، بات بات پر تذلیل ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ، اس پر سوچنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ابھی تم نے حالات کا ایک رخ دیکھا ہے، تمہیں نہیں معلوم بیاہتا اگر میں کیا کر بیٹھ جائے تو زمانہ کیا کیا باتیں بناتا ہے، کس طرح اس پر ہر خوشی کا دروازہ بند سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ کر اماں اٹھ کر چلی گئی۔ میں جانتی ہوں زندگی مشکل ہوگی، عزت آبرو سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، اور میں اس بدنیت شخص کو بتا دینا چاہتی ہوں میرا شوہر کمزور اور بزدل ہے، مگر میں راہ میں پڑی چیز نہیں ہوں، نہ ہی اس کے بھائی کی طرح بے حس ہوں۔ میں مردوں کے اس معاشرے میں اس مرد کے آسرے کے بغیر بھی اپنے آبرو کی حفاظت کر سکتی ہوں جسے زمانے نے میرا محافظ بنایا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور بہت دیر تک اپنے لیے دعا کرتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا اب تک جو اس طرح بے چینی اس کے اندر تھی، نماز اور دعا کے بعد اس میں بہت کمی آ گئی، اور وہ سکون سے سو گئی۔ واقعی اماں نے ٹھیک کہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے اتنے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ محلے والیاں پہلے تو اسے میکے میں چند روز کا مہمان سمجھ کر خوش اخلاقی سے ملتی رہیں، پھر جب اسے یہاں آئے دن پر دن گزرنے لگے تو وہ لوگ جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا متجسس اور بے چین ہونے لگے۔ پڑوسن کسی نہ کسی بہانے روز ہی چکر لگاتے اور سن گن لینے کی کوشش کرتی۔ امی نے اسے اور بھابھی کو سختی سے منع کیا تھا، اصل بات کسی کو نہیں بتائیں گی۔ بھابھی تو خاموش رہیں۔ وہ پوچھنے لگی، کیوں اماں؟ جب میرا کوئی قصور ہی نہیں، پھر میں اصل بات چھپا کر اپنے لیے ان کے انداز میں بیزاری اور تجسس کیوں دیکھوں؟ بے وقوف لڑکی، لوگ اعتبار نہیں کیا کرتے، اپنی پسند کی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی زبان پر نہ لانا۔ پھر اس نے اسی بھابھی کے انداز میں اپنے لیے بیزاری دیکھی جو کبھی اس کی گہری دوست اور خیر خواہ ہوا کرتی تھی۔ ابھی تو مجھے یہاں چند روز ہی ہوئے ہیں اور میں بھائی کے نہیں باپ کے گھر میں ہوں، باپ کی کمائی کھاتی ہوں، پھر انہیں میرا آنا اتنا برا لگا ہے؟ اس روز جب اس نے بھابھی کی رکھائی کو محسوس کیا، دل کی عجیب حالت ہوئی، چپکے چپکے کئی بار روئی۔ 1 مہینے کے بعد اس کے سسرال والوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بستر پر لیٹی تھی کہ نیند آ گئی۔ اسے بھابھی نے جگایا اور دبے دبے جوش کے ساتھ بتایا، علیم آیا ہے، ساتھ میں تمہاری نند اور ساس بھی ہیں۔ سن کر نہ تو دل دھڑکا نہ ہی کچھ جوش پیدا ہوا۔ وہ اسی طرح بستر سے اٹھ کر ادھر آ گئی جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ کمرے کا منظر ایک ہی نظر میں واضح تھا، اکڑی ہوئی گردن والی صفورہ، منہ بنا کر بیٹھی تھیں اس کی ساس، اور حسب معمول سر جھکا کر خاموش بیٹھا علیم۔ اس نے جا کر سلام کیا، تب علیم نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم کہنے کے بعد اسے احساس ہوا آپا اور اماں نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اتنا کہہ کر ہی ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ یہ شخص نہیں بدل سکتا۔ مایوس سی نگاہ اس پر ڈال کر ابا کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شبانہ بیٹی، تمہاری ساس خود آئی ہیں تمہیں لینے۔ اماں کا انداز سسرال والوں کو خوش کرنے والا تھا۔ وہ جھکی جھکی خواہ مخواہ مسکرائی جا رہی تھیں، اور مہمانوں کے سامنے میز لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں خواتین رغبت سے کھا رہی تھیں۔ علیم چائے پینے پر اکتفا کر رہا تھا۔ شبانہ منتظر رہی، ابھی ان تینوں میں سے کوئی کچھ بولے گا۔ ادھر کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، اور علیم بیچارہ بھلا کیسے کوئی بات کر سکتا تھا۔ آخر یہ کھانے پینے کا سلسلہ تمام ہوا۔ اس کی ساس نے پلیٹ ایک جانب رکھ کر کڑے انداز میں اسے دیکھا اور بولی، ہاں بی بی، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہمارے ساتھ چلنا ہے یا مزید میکے میں بیٹھ کر ہمارے اور اپنے خاندان کو جگ ہنسائی کا موقع دینا ہے؟ جائے گی کیوں نہیں جائے گی؟
اصل میں بہن جی یہ بھی جذباتی بھی ہے اور ناسمجھ بھی، بس آپ اسے معاف کر دیں۔ اماں کا خوش آمدی انداز اس کے اندر دھواں بھرنے لگا۔ گھبرا کر ابا کی طرف دیکھا، وہ اماں کے مقابلے میں ایک ڈھال کی طرح محسوس ہوئے۔ ان کے چہرے پر مہمانوں کے لیے نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ بولے، اپنے لڑکے کو سمجھائیں، ہماری بیٹی کوئی لاوارث نہیں، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم وہ آنکھ ہی نکال لیں گے، اور اس کو بھی مرد بننے دیں، ایسا بے غیرت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اشارہ علیم کی جانب تھا، اس نے گھبرا کر سر اٹھایا مگر دیکھا مدد کے لیے اپنی ماں اور بہن کی طرف۔ زبان سنبھال کر بات کریں، ہمارے بچے لاکھوں میں ایک ہیں، آپ کی بیٹی ہمارے گھر بسنا نہیں چاہتی، منصوبہ بنا کر ایسا کھیل کھیل رہی ہے، میرے دونوں بیٹوں کو بدنام کر رہی ہے۔ اماں، وہ شجاعت بھی۔ علیم نے ڈری سہمی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے بولنے نہیں دیا۔ ذرا سی دیر میں کمرہ آوازوں سے بھر گیا۔ پڑوسن آوازیں سن کر چلی آئی، اپنے گھر میں رہ نہیں سکی، نمک لینے کے بہانے ہی چلی آئی اور ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جاتے ہوئے علیم کا سر پہلے سے زیادہ جھکا ہوا تھا اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بھابھی نے میز سے برتن نہیں سمیٹے، کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور لیٹ گئی۔ اپنی قسمت کو روتی شبانہ نے یہ سب خود ہی سمیٹا۔ صبح جب وہ ابا اور بھائی کو ناشتہ دے رہی تھی، اس نے بھائی کو یہ کہتے سنا، ابا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، آپ کو پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ بھائی تو بہنوں کے لیے اس طرح کی بات برداشت نہیں کیا کرتے۔ تمہیں کیا ہو گیا بیٹا؟ اماں جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ تو سمجھیں اماں، نسرین کی آج کل طبیعت کیسی ہے، ٹینشن اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اور پھر شبانہ کا مسئلہ ایسا بھی الجھا ہوا نہیں تھا کہ سلجھایا نہ جا سکے۔ پتہ نہیں ابا کس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ بھائی ابھی تو میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں، اگر جو آپ کے گھر میں ہوتی 2 دن بھی برداشت نہ کرتے۔ دیکھا کیسی زبان چلتی ہے اس کی، بڑے بھائی کا کوئی ادب لحاظ نہیں ہے، سسرال والوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، وہ تو شریف لوگ ہیں، پھر بھی اسے منا کر لے جانے کو تیار ہیں۔ تمہاری سوچ میں یکایک تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے تو تم بھی شبانہ کو وہاں بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ ابا کا انداز چپتا ہوا تھا۔ بھائی ذرا جو شرمندہ ہوئے ہوں، سر جھٹک کر بولے، آپ لوگ علیم سے کہہ دیجئے الگ گھر لے کر شبانہ کو لے جائے۔ ہاں، علیم اگر ایسا سمجھ بوجھ والا ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ شبانہ پر بھائی کے رویے اور باتوں نے بہت برا اثر ڈالا۔ ناشتہ نہیں کیا، کمرے میں آ کر رونے لگی۔ ابا مطب جانے سے پہلے اس کے پاس آئے، پہلے سر تھپکا پھر اپنے ساتھ لگا کر بولے، دنیا بہت ظالم ہے میری بچی، فکر نہ کرو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تم نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، رو نہیں، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تم نے جس حوصلے سے وہ گھر چھوڑا ہے اب بھی اسی کا مظاہرہ کرو، گھر فارغ بیٹھنے کے بجائے بہتر ہے اسکول میں جاب کرو یا پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لے لو۔ وہ اس کے پاس بیٹھے تسلی دیتے رہے، حوصلہ بڑھاتے رہے، اور وہ واقعی ان کی باتوں کے زیر اثر خود میں نئی توانائی محسوس کرنے لگی۔ دیکھ لیا اپنے بھائی کا رویہ، اماں کے انداز میں اس کے لیے فکر تو تھی، اس سے زیادہ انداز یہ جتاتا ہوا تھا کہ تم میری بات نہ مان کر غلطی کر رہی ہو۔ اماں مجھے کسی کے رویوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بعد کہیں جاب کروں گی، کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو اب اپنے بھائی پر بوجھ ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، مطلب تمہارے ابا کا ہے، آمدنی تمہارے ابا کی ہے، اصل مسئلہ تو بہو کا ہے، وہ اپنے گھر میں تمہاری شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں مجھے یقین نہیں آتا، یہ وہی بھابھی ہیں جو کبھی میری دوست ہوا کرتی تھیں۔ ہاں بیٹا، وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے بھی تبدیل ہوا کرتے ہیں، کل تک وہ جانتی تھی تم اس گھر میں مہمان ہو، تمہیں آخر رخصت ہو جانا ہے، مگر اب اسے تم یہاں مستقل پڑاؤ ڈالتی محسوس ہو رہی ہو تو یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی۔ کیا میں لوگوں کے رویوں سے ڈر کر اس 4 دیواری میں واپس لوٹ جاؤں جہاں پر میرے سر کی چادر کو خطرہ ہے؟ اماں میری تو روح کانپ اٹھتی ہے ان لمحوں کے تصور سے، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو شبانہ؟ اماں پھر آپ میری واپسی کے حق میں کیوں ہیں؟ اس لیے بیٹا کہ عورت کے لیے معاشرہ جنگل کی طرح ہے جہاں طاقت کا قانون چلتا ہے۔ تم ایک مرد کی حوث سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہو، تم نہیں جانتی اب تمہارے لیے قدم قدم پر خطرہ ہوگا، لوگ تمہیں بد چلان مفت کا مال سمجھیں گے۔ بس کریں اماں، میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔
तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारा बुरा चाह सकती हूँ? माँ से बढ़कर कौन दुख सुख का साथी और हमदर्द हुआ करता है। बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा सुख ही तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। किस चाव से ब्याह था तुम्हें, क्या मालूम था चंद माह के बाद ही तुम यूँ वापस लौट आओगी। खैर, मैं अभी भी खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूँ। दुख और सुख तो आते रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। हमें दुआ करते रहना चाहिए। दुआ तो मैं बहुत करने लगी हूँ अम्मा, और खुदा के बताए रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ। जब तो इस बदनीयत इंसान से बचकर पनाह लेने आपके दरवाजे पर आ गई हूँ। दुआ करती हो तो अच्छी उम्मीद भी दिल में जगाए रखो। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा है अलीम के स्कूल जाकर इससे बात करें, इसे समझाएं। शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। जिस तरह के हालात इसके घर में हैं, बेहतर यही है अलग घर ले और तुम्हें वहाँ अपने साथ रखे। शबाना जानती थी अलीम जैसे शख्स के लिए घर वालों की राय के बगैर एक कदम भी उठाना मुश्किल है, और घर अलग लेने की जहाँ तक बात है ये तो मुमकिन ही नहीं। इसने अम्मा से कुछ नहीं कहा। अब्बा चंद दिनों के बाद अलीम से मिलने स्कूल गए। वापस आकर बताया मैंने जो कुछ कहा वो सर झुकाए सुनता रहा। अपने घर वालों की तरह इसके अंदाज में तेज़ी तुरशी नहीं थी। इसने शुबाना पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं धरा। मुझे उम्मीद है 2-1 रोज़ में फ़ैसला करके शुबाना को लेने आ जाएगा। अब्बा और अम्मा दोनों ही इसकी आमद के मुंतज़िर और काफ़ी हद तक पुरयकीन थे, जबकि शुबाना चंद दिनों में इसे अच्छी तरह जान चुकी थी। अब्बा तो ये समझे थे सादतमंदी अदब की वजह से उनके आगे नहीं बोला। उनकी हर बात पर इस बात में सर हिलाता रहा और मुअद्दब बैठा रहा, जबकि वो जानती थी ये अलीम की आदत और कमज़ोरी है। वो किसी के सामने भी सर उठाकर जुर्रत के साथ अपनी बात नहीं कह सकता। चूँकि अम्मा उठते बैठते अलीम की आमद के मुंतज़िर रहती थीं, उन्होंने घर में पूरे यकीन के साथ हर किसी से कहा था बस चंद दिनों की बात है, ख़ुद हमारी शुबाना को लेने आएगा। ये इन्हीं बातों का असर था कि भाभी का रवैया इसके साथ बहुत बेहतर हो गया था। इसका दिल जिस तरह दुखा था, जो सदमा उनके बदल जाने से इसने उठाया था, वो भुला देने वाला नहीं था। इसलिए वो खुद मोहतात हो गई थी। शादी से पहले भाभी के ही आगे पीछे रहा करती थी, अब इसका ज़्यादा वक्त अम्मा के साथ गुजरता था। घर वाले मुंतज़िर रहे और उधर से तलाक़नामा मौसूल हो गया। अम्मा तो बेहोश हो गईं और वो ख़ुद सख्ते की कैफियत में थी। वो लोग इतनी जल्दी ऐसा कदम उठा लेंगे, इसके सन गुमान में भी नहीं था। वो अलीम के नाम को अपने नाम से जुदा करने का तसव्वुर नहीं करती थी। यही सोचा था वहाँ नहीं जाएगी जहाँ इज़्ज़त व आबरू ख़तरे में है। बस अलीम के नाम से यहीं बैठी रहेगी। इसने ये नाम ही छीन लिया। इद्दत की मुद्दत इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। भाभी आते जाते दिल को जलाने वाली बात करती। मोहल्ले की वो औरतें जो कभी महीनों बाद चक्कर लगाया करती थीं, अब हर दूसरे तीसरे रोज़ बज़ाहिर हमदर्दी जताने मौजूद होती। तरह तरह के सवाल करती, आपस में कयास आराइयाँ होती, और इसे लगता वो इन्हीं जैसी औरत होने के बावजूद अब उनसे बहुत कमतर हो गई है। एक खिलौना, एक बेजान चीज़ जो सबके दिल बहलाने और वक्त गुजारी के लिए बनी है। अब्बा और अम्मा के सर झुक गए थे। अम्मा रोती रहती, अब्बा सर झुकाए खामोश बैठे रहते, और वो ख़ुद को मुजरिम महसूस करने लगती। उसके अंदर गुबार जमा होने लगा था। वो रोना चाहती थी, इसे कोई शाना भी तो मुयस्सर न था। अम्मा अब्बा के सामने रोकर वो इन्हें मज़ीद दुखी करना नहीं चाहती थी। इद्दत की मुद्दत ख़त्म हुई और वो सब ब्राउन लॉन के प्रिंट का सूट पहनकर काली चादर ओढ़े कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। शुबाना बेटा, कहाँ जा रही हो? अम्मा, आप तो जानती हैं यहाँ करीबी स्कूल की प्रिंसिपल मेरी टीचर रह चुकी हैं। उन्होंने अपना स्कूल खोला था तो मुझे जॉब की ऑफ़र की थी, वहीं जा रही हूँ। शायद अब भी उनके पास कोई जगह मौजूद हो। रहने दो बेटा, ज़माना बड़ा ज़ालिम है, तुम और क्या क्या बर्दाश्त करोगी। अम्मा, हिम्मत हार कर बैठ जाना भी तो अक्लमंदी नहीं। फिर गैरों के चलाए तीर इस कदर घायल नहीं करते जितना कि अपनों के रवैये ज़ख्मी कर देते हैं। अम्मा समझती थी इसका इशारा भाई और भाभी की तरफ है। मुत्तफ़िक भी हो गई, फिर कुछ भी नहीं कहा। वो उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान स्कूल चली आई। मैडम सफ़िया ने खुले दिल से इस्तकबाल किया और हैरान भी हुई। तुम आज कैसे रास्ता भूल गई शुबाना? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, खुश तो हो अपने घर में। नहीं मैडम, शादी हुई थी फिर ख़त्म भी हो गई। मैं जॉब की तलाश में यहाँ आई हूँ। वह कसूरवार नहीं थी, मगर ये सब कहते हुए किसी मुजरिम की तरह दिखाई देती थी। झुके सर और पस्त आवाज़ के साथ साथ इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और सरासीमगी का तासुर था। मैंने तो तुम्हें पहले भी जॉब की ऑफ़र की थी।
तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो, मुझे उम्मीद है टीचर भी बहुत अच्छी साबित होगी, बस अपनी जॉब पक्की समझो। उनके अंदाज में ना हैरत उतरी थी ना तजस्सुस। उन्होंने एकदम से शुबाना को बाइतमाद कर दिया। पढ़े लिखे सुथरी सोच रखने वाले लोग किसी नेमत से कम नहीं हुआ करते। स्कूल से वापसी पर ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शाम को अब्बा और भाई घर आए। अम्मा ने ही दोनों को इसके स्कूल में जॉब के बारे में बताया। अब्बा ने सुनकर कहा, मेरी बेटी, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है। शहजादियों जैसे ऐश के साथ रह सकती हो। अगर तुम्हारी खुशी जॉब करने में है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। भाई ने कोई तबसरा फ़िलहाल फौरी तौर पर नहीं किया। अगली सुबह उन्होंने इसकी जॉब पर ख़ासा एहतजाज किया। पहले तो ये कहते रहे, लोग क्या कहेंगे, ज़माने की ख़राबी का रोना। आखिरी बात ये कि नसरीन की तबीयत ठीक नहीं, इसे कुछ तो ख्याल होना चाहिए। बजाय इसके घर में रहकर घर का काम संभालती, नौकरी करने चली है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। अगर मैं इस घर में आकर ना बैठती तब ये काम कौन देखता। जब से इस घर में आई थी पहली बार भाई के सामने बोली थी, तब की बात और थी। अब तुम इस घर में हो, भाभी जो काम करती हैं वो मुझे बता दें, मैं कर लिया करूँगी। हाँ बेटा, शुबाना ठीक कहती है। बहू तो आजकल अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से कुछ नहीं करती। हांडी रोटी पहले मैं करती थी, अब सुबह का नाश्ता रात का खाना शुबाना बनाती है। दोपहर को मैं कर लेती हूँ। स्कूल में नौकरी के बाद भी ये ऐसा ही करेगी। और झाड़ू बर्तन कपड़ों की धुलाई इन सब के लिए तो मुलाजमा आती है। फिर भी अम्मा, शुबाना को घर में रहना चाहिए। भाई गड़बड़ाए ज़रूर, अपनी बात से हटे नहीं। बस खामोश, अभी मैं ज़िंदा हूँ और अपनी बेटी की खुशी मुझे हर शय से अजीज़ है। तुम और तुम्हारी बीवी अगर अलग रहना चाहो तो हमें इस पर एतराज़ नहीं। घर के ऊपर की मंजिल पर बने 3 कमरे खाली हैं, तुम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अब्बा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं। बेटी की खातिर हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। नसरीन शौहर के लिए चाय लेकर आई। ये बात सुनी तो अच्छी नहीं लगी। अलग होने की सूरत में बहुत काम करना पड़ता और इसे इस हालत में किचन में जाते ही मसालों की बू से उबकाइयाँ आने लगती थीं। मैं घर में बदमज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस ये मेरा फ़ैसला है। मतब पर फ़ोन करके मुलाजमों से कह देता हूँ हम आज लेट आएंगे। अभी 1-2 मज़दूरों को बुलवा कर सामान ऊपर पहुँचाता हूँ। अब्बा के आगे दोनों में से कोई नहीं बोल सका। शुबाना तैयार होकर स्कूल चली गई। एक अच्छा दिन गुजार कर वापस लौटी तो भाई और भाभी का सामान ऊपर शिफ्ट हो चुका था। अम्मा किचन में थी, वो भी सीधी इधर ही आके, क्या पकाया है अम्मा? बड़े दिनों के बाद इसने शौक़ से खाने के बारे में पूछा था। कीमा भरकर करेले बनाए हैं, अब रोटी पकाना रह गई है। तुम कपड़े बदल कर जल्दी से आ जाओ और सलाद तैयार कर लो। अभी मुलाजिम तुम्हारे अब्बा और भाई का खाना लेने आ जाएगा। भाई का खाना तो अब भाभी भेजेंगी। नहीं बेटा, ऐसी गैरियत बरतने को मेरा जी नहीं माना। मैंने बहू को भी खाना भिजवा दिया है, बेटे का भी भेजूँगी। हाँ, सुबह और रात का वो खुद ही करेगी। दोपहर में मैं बनाती हूँ, सबको दूँगी। अच्छी बात है। इसने इस बात में सर हिला दिया। ज़िंदगी जैसे ढप पर आने लगी थी। इसे जीने का मकसद मिल गया था। नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते, इनकी मासूम शरारतें देखते वो अपना गम बहुत हद तक भूल जाती थी। मैडम इसका बहुत ख्याल रखती थी, बड़ी शफ़क़त मोहब्बत का बर्ताव करती। वो भी एक रोज़ अपनी कहानी उनसे कह बैठी थी। ज़मीर की अदालत में सुरखरू होने वाले कभी दिलो जहन पर बोझ और शर्मिंदगी लेकर नहीं जीते, और यही लोग इंसानियत की तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो गई, अभी बहुत से मोड़, कई खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। कभी लोगों के रवैयों, उनकी बातों से खौफज़दा मत होना। शाम के औकात में एकेडमी ज्वाइन कर लो और अपनी तालीम पर भी तवज्जो दो। इसने मैडम की हर बात को बगौर सुना और पल्लू से बांध लिया। कुछ दिन बाद इसने एकेडमी ज्वाइन कर ली और इसकी मसरूफियात में इजाफ़ा हो गया। इसे मसरूफ़ ज़िंदगी बोझ नहीं लगती थी। उस रोज़ हवा सुबह से बंद थी, फ़ज़ा में गुबार सा था। अम्मा कहने लगी, लगता है आज आंधी आएगी। वाकई आसार तो कुछ ऐसे ही थे। नाश्ते के बाद वो स्कूल चली आई। छुट्टी होने में अभी कुछ वक्त बाकी था जब आंधी उठी और हर शय धूल में अट गई। हवा गर्म और शकील थी, इतनी तेज़ी और शोर लिए हुए थी कि लगता था अब कभी नहीं थमेगी। ज़रा देर बाद छुट्टी की बेल हो गई। जिनके वालिदैन लेने आए थे वो तो चले गए, मगर जो बच्चे खुद से घरों को जाते थे वो परेशान खड़े थे। शुबाना उनके चेहरों पर सरासीमगी देखकर घर जाते जाते रुक गई।
आप परेशान ना हों, जब तक आप सबको घरों से कोई लेने नहीं आ जाता या आप चले नहीं जाते मैं आपके पास हूँ। गेट पर चौकीदार मौजूद था और मैडम बेबी ऑफिस में थी, मगर वो तो उन सबके दरमियान मौजूद इन्हें तसल्ली दे रही थी और इस वजह से बच्चों के चेहरों पर इत्मीनान दिखाई देने लगा था। उस रोज़ स्कूल खाली होते 1 घंटे से भी ऊपर लग गया। आंधी का ज़ोर टूट चुका था। ये इत्मीनान करने के बाद कि अब स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं, वो मैडम के ऑफिस में आई और इन्हें सलाम करके अपने जाने के बारे में बताने लगी। छुट्टी हुए तो 1 घंटा हो गया शुबाना। आंधी का ज़ोर भी तकरीबन 20 मिनट पहले टूट चुका था। आप अभी तक यहीं मौजूद हैं? मैडम, बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के मुंतज़िर स्कूल में मौजूद थे और ऐसे तूफ़ानी मौसम से खौफज़दा भी थे। मैं उनके पास रुक गई थी। मैडम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और वो चादर ओढ़कर इस 4 दीवारी से बाहर आ गई। मोड़ मुड़ते ही अचानक एक मोटरसाइकिल इसके सामने आ गई। वो गिरते गिरते संभली। हवास बहाल हुए तो सामने शुजात को चेहरे पर बड़ी मकरूह मुस्कुराहट सजाए देखा। सलाम अर्ज़ करता हूँ, कहिए मिजाज कैसे हैं? तुम यहाँ मेरे रास्ते में? वो अपनी नफ़रत और गुस्से को दबा नहीं सकी। अब तो एहसास हो गया होगा हमारा घर छोड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी ज़रा सी बात मान लेती, ऐश में उम्र गुजारती। अब गलियों के खाक छानती फिरती हो। अफसोस तुम्हारे घर वाले चंद दिन भी तुम्हारा खर्च ना उठा सके। मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। हाँ अच्छा, अभी तक अक्कड़ बाकी है। चलो ठीक है, कुछ दिन और कर लो नौकरियाँ, फिर मिजाज पूछूंगा। तुम किस कदर बेगैरत और जलील इंसान हो। तुम्हें ज़रा भी हया और रिश्तों का पास नहीं है। कौन सा रिश्ता? अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जब था तब तुमने कौन सा लिहाज किया? कुछ लोगों को इधर आता देखकर वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर चला गया, मगर अब वो चौकन्ना रहने लगी थी। एक शाम जब अकेडमी से वापस आई तो मैडम को एक महज़्ज़ब सी खातून के हमरा अपने घर में मौजूद पाया। मैडम की मौजूदगी पर हैरत और खुशी तो हुई, इससे ज़्यादा इसे अम्मा अब्बा के चेहरे पर चमकने वाला इत्मीनान मुसर्रत हैरान कर गई। वो दोनों मैडम की आमद पर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ये तो अम्मा ने उनके जाने के बाद बताया कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी। मैडम के साथ जो दूसरी खातून थी उनकी खालाजाद थी। उनका भाई डॉक्टर है, पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। कह रही थी पहली शादी 10 साल रही, बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर उम्र में तुमसे कुछ ज़्यादा है, मगर बेटा तुम्हारी मैडम उनकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? ज़िंदगी में इस मोड़ के बारे में तो इसने सोचा ही नहीं था। वो ख़ुद से फ़र्ज़ कर चुकी थी कि अब ऐसा सोचना भी हिमाकत है। अम्मा ने जब इसकी राय पूछी तो वो जवाब में कुछ भी नहीं कह सकी। अगले रोज़ स्कूल में मैडम इसकी मुंतज़िर थी। इसके आते ही ऑफिस में बुलवा भेजा और बोली, मैं ये बात तुम्हारे वालिदैन से करने से पहले तुमसे भी कर सकती थी। मुझे यकीन है तुम इन लड़कियों में से हो जो वालिदैन के फ़ैसलों के आगे सर झुका दिया करती हैं। मैडम, अब दोबारा से इस बारे में सोचना भी अजीब लगता है। ज़िंदगी पर तुम्हारा हक़ है शुबाना, और डॉक्टर मज़हर बहुत अच्छे बेहद नफीस इंसान हैं। मैंने बहुत सोच कर तुम्हारा नाम उनके सामने रखा है। मैं ये चाहती हूँ तुम्हारे सारे दुखों का अजाला हो जाए। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही मैडम, तो ठीक है, इस मामले को मुझ पर और अपने वालिदैन पर छोड़ दो। यकीन करो हम सब तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। जो भी फ़ैसला करेंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए ही करेंगे। फिर इसने वाकई मामला उन पर छोड़ दिया और जिस रोज़ उसके निकाह की मिठाई और छुआरे मोहल्ले में बटे, हर कोई हैरान था। औरतें मुबारकबाद देने के बहाने आती और भाभी से सरगोशियों में होने वाले दूल्हा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती। आज तो भाभी भी फिर से उसकी दोस्त बन गई थी। बार बार मज़हर का नाम लेकर इसे छेड़ रही थी। डॉक्टर मज़हर उम्र में इससे खासे बड़े ज़रूर थे, मगर बहुत स्मार्ट और ज़िंदा दिल इंसान थे। उस मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ जो पहले इसकी ज़िंदगी में आया था। वो बाइतमाद और ज़िंदगी से भरपूर थे। उनसे मिलने के बाद शुबाना की फितरी शौक़ी फिर से लौट आई थी। पहले वाली शुबाना बन गई थी। डॉक्टर मज़हर हमदर्द दिल के मालिक थे। ज़रूरतमंदों की मदद करके खुशी महसूस करते थे। अब इस नेक काम में शुबाना भी उनका हाथ बटाने लगी। अक्सर उनके क्लिनिक और क्लिनिक से मलहका छोटे से वार्ड में चली जाती, मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को तसल्ली देती और उनकी बातें सुनती।
इसे अब एहसास होने लगा था दुनिया में कितने दुख, कितने गम हैं, और इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक खुद इंसान पर ही लागू होती है। हम में से हर कोई मफाद परस्त और लालची है। अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरे को परे धकेल देने में हम आर नहीं समझते। छोटी छोटी खुदगर्जियाँ जो घरों की चार दीवारी से शुरू होती हैं और फिर सारे माशरे में फैल जाती हैं। हम में से कोई भी अपना मुहासबा करने को तैयार नहीं है। दूसरे पर इल्ज़ाम धरना हमारी आदत बन चुकी है। इसने अल्लाह से लौ लगाई थी, दुआ को मामूल का हिस्सा बनाया था। अल्लाह ने भी इसे मायूस नहीं किया। मजहर जैसा शौहर, 3 प्यारे प्यारे बच्चे इसके कुल कायनात थे। वो शऊरी कोशिश करती थी कि बच्चों के दरमियान मसावी सलूक कर सके। कहीं ऐसा ना हो गैर इरादी तौर पर ही किसी एक बच्चे को दूसरों पर फौकियत देने लगे। जिस माजी को वो अपनी दानिस्त में भुला चुकी थी अभी इसके अंदर जिंदा था। जब ही तो वो अपने बच्चों को अलीम और शुजात नहीं बनाना चाहती थी। बच्चे स्कूल चले जाते, घर के कुछ काम निपटा कर वो क्लिनिक चली आती। महीने में एक बार डॉक्टर साहब गरीब बस्तियों में मरीज़ों के मुआयने के लिए जाते, तब भी वो साथ होती। और अगर वो छुट्टी का दिन होता तो बच्चे भी हमरा हो लेते। वो शहर का गुंजान आबाद और पुराना इलाका था। तंग गलियाँ, हर तरफ कूड़े के ढेर और सैलन। पुराने मकान एक दूसरे के आसरे पर खड़े थे। ये यहाँ के रिहायशियों की हिम्मत थी या मजबूरी, अपने कुनबों के हमरा इन मकानों में आबाद थे जो अब गिरे कि तब गिरे की तफसीर बने हुए थे। डॉक्टर साहब मरीज़ों को मुफ्त चेक करेंगे, दवाएं भी देंगे। ये ऐलान सुनते ही मरीज़ों का रश लग गया था। वो लोगों को मुनज़्ज़म अंदाज में बिठाने में मसरूफ़ थी। किसी ने पीछे से इसका हाथ पकड़कर मुतवज्जा करना चाहा। पलट कर देखा, सफ़ूरा आपा इसके सामने थी। इसकी आंखों में हैरत और पहचान की चमक उभरी, जबकि उन्होंने इसे पहचान लेने के बाद ही मुतवज्जा किया था। अल्लाह के लिए मेरे भाई को देख लो, इसकी हालत अच्छी नहीं, डॉक्टर साहब से सिफारिश कर दो। कितना बदला हुआ अंदाज था उनका। कहाँ है आपका भाई? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उधर वो जो चारपाई रखी है उस पर लेटा है। वो बस यूं ही बिना सोचे समझे मरीज़ की चारपाई के करीब चली आई। वो शुजात नहीं, इसका साया था। यकीनन नशे, बुरी सोहबत ने इसे इस हाल तक पहुंचाया था। और इसकी चारपाई के करीब ज़माने भर की मस्कीनी चेहरे पर सजाए अलीम बैठा था। यकीनन वो आज भी इतनी ही कमज़ोर शख्सियत का मालिक था। इसे अलीम या शुजात से कोई हमदर्दी नहीं हुई। वो अपना बोया काट रहे थे। शुजात को अपने घनाउनेपन की सज़ा दुनिया में ही मिल चुकी थी और अलीम जैसा बुज़दिल, कम हिम्मत वहीं खड़ा था। शुबाना ने इसे बहुत साल पहले देखा था। शुबाना? अलीम इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैं मिसेस डॉक्टर मजहर हूँ, इसने तस्हीह ज़रूरी समझी। ओह बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ डॉक्टर साहब से कहिए मेरे भाई को ज़रा जल्दी चेक कर लें। इसके सख्त अंदाज पर घिघिया कर कहने लगा। हमें माफ़ कर दो शुबाना बहन, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुमने ठीक कहा था, शुजात नशा करने लगा था। इसकी इसी हालत ने मेरे अम्मा अब्बा और अलीम को अच्छे भले घर से यहाँ इस ताफ़ुन ज़दा चूहेदान में बिठा रहा है। हम तो कहीं के नहीं रहे, बर्बाद हो गए। सफ़ूरा आपा रोने लगी। पता नहीं बर्बाद करने वाले हमेशा आबाद रहने की खुशगुमानी में क्यों रहते हैं। हम लोग अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को जानता है और वह दुआ करने वालों की सुनता है। कभी कभी हालात हमें अल्लाह से मुतनफ़र कर दिया करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि मांगने वालों को, अपनी राह पर चलने वालों को वो तन्हा नहीं छोड़ा करता। उन्हें रोशनी भी देता है और ताकत भी, सुकून भी और राहत भी। और ये सुकून, ये राहत, ये रोशनी, ये ताकत जो वो रहमान और रहीम दिलों में उतारता है, इसका रंग कैसा है ये वही जानते थे जिन्हें दौलत अता हुआ करती है। ये नावल तो ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।